दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीएससी एआईआर 4 श्रेयांश कुमार के इंटरव्यू का पूरा ब्रेकडाउन। और विश्वास करो, कुछ जवाब ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यहाँ मिलेगा आपको सीखना, बनाए रखना और आईएएस मानसिकता का पूरा डोज। तो तैयार हो जाओ पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि हम उम्मीदवार की हर गलती को एक्सपोज करेंगे और सही आईएएस स्टाइल में जवाब भी सीखेंगे। और हाँ, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप टॉप एयर्स में आत्मविश्वास और स्मार्ट उत्तर कैसे दे सकते हैं और अपना इंटरव्यू गेम अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं और देखेंगे कैसे टॉप एआईआर भी ट्रिकी सवालों में फंस गए हैं और हम उनके उत्तरों का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। Morning, sir. Morning. Good morning. Please take your seat. Thanks. You're Mr. Shreyans. Yes, sir. Shreyans, introduce yourself to board members. Good morning, everyone. I'm Shreyansh Kumar. I'm from Kishangarh, Rajasthan. I've completed my graduation from IIT Bombay in mechanical engineering. Thereafter, I worked with EY as a business consultant for around 2 years. And thereafter, I left it to prepare for UPSC. So, why somebody who's a IIT graduate getting into civil services instead of getting into corporates? So, I was in corporate for 2 years. Yeah. And thereafter, I was looking what would be my next steps. And I was going through different opportunities that I can get. And I stumbled upon civil services, and it inspired me as a good next option, which can give me a wide gamut of opportunities and a platform in which I can contribute to the nation building as well and have a very, very prestigious job. So you stumbled upon this career. Yes. And it's very likely that after once you get into it, you'll stumble upon something else as well. I think within IAS, when I did the research, I talked to my seniors. They told me that within IAS, you get a gamut of opportunities. Like you get to be in different, like in district administration, you can take deputation in the centers as well. So there are a wide range of opportunities within IAS and within other civil services which are there. So I don't think I'll have to look outwards. I can always look inwards within what are different ways I can contribute in the job while satisfying myself. I can see that you did your graduation from IIT Mumbai in mechanical engineering. Yes, sir. One of the subject which is available in civil services is optional, but you went on to choose anthropology. You never studied. So why this infidelity to your own discipline? So I would not say it is an infidelity. Correct? If we agree to the main aspects of this theory, it appears that the cost of development of Homo sapiens into erectus and a big skull human being was born by women of the society. Yes. Do you believe that anthropology is unjust to women? I don't think so. Anthropology as such. Human development is unjust to women. That is how it has happened biologically, you can say. But now, with our rationality in the society, we are able to identify that such thing has happened, and now we are trying to make sure that all the injustices are taken care of and empowerment of women happens. But if we look at our role as society and as a political class against the Women Reservation Bill in the Parliament, it appears that we are not adequately prepared to compensate for what we did in the past. So I think the change will have to come from the society itself. And slowly, as we can see, there are social reformers who are pushing towards it. And we need to generate the consensus and the political will to ensure that the much needed thing is done. Do you believe if we had women in the leadership position for say another 2 decades after Indira Gandhi, we might have been in a different pedestal on gender justice thing? So woman leader at the top would have given role models to many women
and they would have come out and made sure that they are able to get their rights. So that would have definitely helped. But at the top, it is one thing, but the movement has to come from the grassroots as well. So it has to be a balance of both. So that would have definitely helped. Thank you, Shreyans. देखो दोस्तों, उम्मीदवार जैसा ही इंटरव्यू में आता है, सबसे पहले बोला, सभी को सुप्रभात। लगता है नॉर्मल है ना? लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू में ये गलत है। क्यों? पैनल सेमिनार नहीं है, स्टेज स्पीच नहीं है। अगर पैनल में महिला सदस्य भी है, जैसे मामले में 5 पैनल में 1 महिला है, पहले उनको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग मैम, फिर सर को गुड मॉर्निंग सर। और हर कोई मत बोलो, ये कैजुअल लगता है और औपचारिक शिष्टाचार तोड़ता है। पैनल ने पूछा कि आईआईटी के बाद सिविल सर्विसेज क्यों चुने? कैंडिडेट ने बोला कि अवसर ज्यादा हैं। देखो भाई, ये सबसे बेसिक और कमजोर जवाब है। पैनल को लगता है कि बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, कोई वास्तविक प्रेरणा नहीं है। सही तरीका ये होता है कि आप शांत स्वर में बोलते हैं, इंजीनियरिंग ने विश्लेषणात्मक सोच सिखाई, लेकिन शासन में सीधा प्रभाव चाहिए था। नीति और शासन में काम करके देश के लिए समाधान लाया जा सकता है। एआई और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना मेरा लाभ है। समझे? केवल अवसरों पर फोकस नहीं, वास्तविक प्रभाव पर फोकस होना चाहिए। ये एआईआर एक लेवल का अप्रोच है। अब अगला सवाल। कैंडिडेट से पूछा गया कि आईआईटी सिविल पढ़ाई के बाद एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया, क्या ये बेवफाई है? कैंडिडेट ने जल्दबाजी में बोला, यह बेवफाई नहीं है। भाई, यहां पे कैंडिडेट की सबसे बड़ी गलती टोन और एक्सप्रेशन में थी। हंस बोला मतलब अनादर लग सकता था। सही तरीका ये होता कि शांत और प्रोफेशनल टोन में बोलते, सॉरी सर, मैं समझाता हूं। सिविल इंजीनियरिंग ने तकनीकी कौशल दिया और मानव विज्ञान ने सामाजिक, सांस्कृतिक और शासन की समझ दी। ये विषय स्विच बेवफाई नहीं है, ये बहुविषयक ताकत है। देखा स्वर और तर्क कितने महत्वपूर्ण हैं? दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा पेचीदा था। पैनल ने पूछा कि क्या ये अन्याय है कि महिलाओं को सिर्फ विकास का हिस्सा माना गया? उम्मीदवार ने कहा, यह महिलाओं के लिए अन्याय है, लेकिन यह विकास का हिस्सा भी है। देखो, उम्मीदवार ने यहां विरोधाभास दे दिया। पहले अन्याय बोला, फिर विकास का हिस्सा भी, और ऐतिहासिक संदर्भ बिल्कुल मिस हो गया। सही तरीका ये होता, ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया। प्रारंभिक मानव विज्ञान अध्ययन पुरुष केंद्रित थी, महिलाओं के दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया गया। आधुनिक मानव विज्ञान नारीवादी अध्ययन और लिंग अनुसंधान में शामिल है। हाँ, अन्याय हुआ है, लेकिन अनुशासन विकसित करके महिलाओं को सक्रिय भागीदार बनाया गया। टोन न्यूट्रल होना चाहिए, हल्के ढंग से या कैजुअली नहीं बोलना। अब सबसे दिलचस्प सवाल। पैनल ने पूछा कि अगर इंदिरा गांधी के बाद 20 साल तक महिला शीर्ष नेतृत्व में होती, लैंगिक अन्याय कम होता? उम्मीदवार ने कहा, शीर्ष पर महिलाएं रोल मॉडल होंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर आंदोलन महत्वपूर्ण होगा। भाई, यहां पर उम्मीदवार सही लग गया। सिर्फ रोल मॉडल बोल दिया और स्टांस क्लियर नहीं। ऐतिहासिक संदर्भ गायब था और सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत मुद्दों की गहराई नहीं दी गई। सही तरीका ये होता है, महिला नेता प्रेरित करती हैं और कथा परिवर्तन करती हैं। लेकिन सिर्फ शीर्ष नेता होने से पितृसत्ता नहीं टूटता। नीतियां, शिक्षा, प्रतिनिधित्व और मानसिकता में बदलाव जरूरी है। इंदिरा गांधी के समय में भी महिलाएं मुद्दे उठाती हैं। नेतृत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन शीर्ष प्लस जमीनी प्लस नीति प्लस सामाजिक परिवर्तन साथ में होना चाहिए। समझे? तो आईएएस स्तर की सोच है,
सिर्फ रोल मॉडल नहीं चलेगा। दोस्तों, ये मॉक इंटरव्यू के 4 पेचीदा सवाल हैं। देखा कैसे सही जवाब देते हैं कैंडिडेट को चरणबद्ध तरीके से और कैसे परफेक्ट फ्रेमवर्क से एआईआर एक माइंडसेट दिखता है। यूपीएससी साक्षात्कार में स्पष्टता, गहराई और संतुलन सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सवाल सबसे मुश्किल लगेगा। और याद रखो, केवल रोल मॉडल या अवसरों पर फोकस नहीं, सिस्टम, संरचना और वास्तविक प्रभाव सबको ध्यान में रखना है।